Hello everyone, I am Kajal Kaushal. Welcome you again to the Ye School platform. So the next video in the C++ programming course is inheritance. In this video, we will discuss about what is inheritance, what are base classes and derived classes, different form of inheritance, visibility mode, public, private and protected visibility mode also. So let's start. And also if you people feel any doubt, you can mail me on kajalkaushal1624@gmail.com. I will surely reply to all your queries. So what is inheritance? The capability of a class to derive properties and characteristics from other class is called inheritance. When a class derives the properties member function, member, data members from another class, this is called inheritance. Inheritance is a splendid concept of object-oriented programming. It gives the advantage of code reusability. इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज यूज कर सकते हैं. दैट इज वी डू नॉट नीड टू मेंशन द कोड अगेन एंड अगेन. बाय इनहेरिटिंग another class we can use the code by specifying it at once. Reusing existing code saves time, money, efforts and increase the program's reliability. हमें जब कोड को दोबारा यूज करते हैं उसी सेम कोड को, तो उससे हमारा टाइम, एफर्ट्स और हमारे मनी भी बचता है. ऑल द थिंग्स वी कैन सेव. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टाइम. वी कैन सेव अवर टाइम. Inheritance allows the addition of additional features to the existing class without modifying it. अगर हमें दूसरी नई बेस क्लास में कुछ नए फीचर्स ऐड करके उस पुराने कोड को यूज करके और उसमें नए फीचर्स ऐड करके उसको मॉडिफाई करना हो तो वो भी हम इनहेरिटेंस में कर सकते हैं. वी कैन डिराइव ए न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन एंड ऐड न्यू फीचर्स टू इट. एग्जिस्टिंग क्लास से हम नई क्लास बना सकते हैं और उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं. वन मोर रीजन इज द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ inheritance. Inheritance का nature is transitive. What is transitive nature? It implies that if two objects that are in succession show a pattern, then all the objects of that order must show the exact pattern. अगर हमें किसी क्लास में एक पैटर्न में हमने अपने कोड लिखा है, the derived class also get the same pattern, then it is called the transitive nature of inheritance. For example, a new class Tata Safari is declared as subclass of car. हमने एक टाटा सफारी को एक सब क्लास बनाया कार क्लास का, which is itself a subclass of vehicle. क्लास हमने एक क्लास बनाई कार जिसका सब क्लास बनाया व्हीकल और उस व्हीकल का सब क्लास हमने बनाया टाटा सफारी. तो ये जो पैटर्न है जिसमें कोड को एग्जैक्ट पैटर्न में यूज किया गया है, all the three classes, in all the three classes, this is called the transitive nature of inheritance. So next is, what are base classes and derived classes? First is base class. A base class is a class in object oriented programming language from which other classes are derived. जिस क्लास से हम दूसरी क्लास डिराइव करते हैं, दूसरी क्लास बनाते हैं, वो क्लास होती है बेस क्लास. इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं जिससे हमें दूसरी क्लास बनानी होती है. द बेस क्लास मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर इनहेरिटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास. बेस क्लास के मेंबर और मेंबर फंक्शन हमारी डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होते हैं. वी कैन यूज देम also in the derived class, the member function and the data members. Next is derived class. A class that is created from an existing class, the derived class inherits all the members and the member function of the base class. Derived class जब किसी parent class से बनी हुई class होती है उसको derived class बोलते हैं और हम उसमें base class के सारे data members और member functions को use कर सकते हैं. The derived class can have more functionality with respect to the base class and can easily access the base class. derived class में हम अपने additional features भी add कर सकते हैं और हम उससे base class को easily access कर सकते हैं. कैसे हम एक base class और derived class का syntax use करते हैं? Like इस example में any class animal, this is the base class जिससे हम दूसरी क्लास बनाएंगे, वो होती है base class. फंक्शन यूज किए हैं हमने eat एंड
स्लीप। और जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है उनका सिंटेक्स होता है क्लास, हमारी डिराइव्ड क्लास का नेम, सेमीकोलन, सॉरी कॉलन, पब्लिक। दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर जिनको हम चेंज कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो भी हमें यूज करना है। एक्सेस स्पेसिफायर और जो भी हमारी बेस क्लास है उसका नाम, दैट इज एनिमल। और बार खींचने हमने एडिशनल अपने खुद से फीचर ऐड किया है, फंक्शन ऐड किया है, इसमें हम ईट एंड स्लीप को भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हाइब्रिड, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। सिंगल इनहेरिटेंस, व्हेन a subclass inherits only from one base class। जब एक सब क्लास सिंगल एक बेस क्लास से डिराइव होती है तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिमिलर पैटर्न में मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन ए बेस क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। जब मल्टीपल बेस क्लासेस से इनहेरिट होती है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। व्हेन मैनी सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। एक सिंगल बेस क्लास से हम जब डिफरेंट सब बेस डिराइव्ड क्लासेस बना देते हैं तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ क्लास दैट इज इटसेल्फ इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। मल्टी लेवल में लाइक ए कोई क्लास है, उससे हम दूसरी क्लास बनाएंगे बी, और बी से हम कोई तीसरी क्लास बनाएंगे सी, दैट इज मल्टी लेवल, जिसमें डिफरेंट बेस क्लासेस अलग अलग फॉर्मर वाली से बनती जाएंगी। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, व्हेन a subclass inherits from multiple base classes and all of its base classes inherit from a single base class। जब किसी क्लास को मल्टीपल बेस क्लास से बनाते हैं और वो मल्टीपल बेस क्लास किसी एक सिंगल बेस क्लास से बनते हैं तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैं इन सबके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सारी पैटर्न समझाऊंगी। So next is visibility mode. The visibility mode basically controls the access specifier to be for inheritable member of the base class in the derived class. Base class के कौन कौन से members को हम access कर सकते हैं in the derived class, we can use them through the visibility mode flow chart. Visibility mode flow chart में अगर हमें class का specifier public है तो हम इनहेरिटेबल पब्लिक मेंबर्स को पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर क्लास का स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड है और उसको प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट कर रहा है तो हम उसको प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स में भी यूज कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट यूज द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इनटू द derived class directly. So this is the flowchart for visibility mode of access specifier. नेक्स्ट इज पब्लिक विजिबिलिटी मोड। अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। द पब्लिक डेरिवेशन मीन्स दैट द डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास। जब हम डिराइव्ड क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक मेंशन कर देंगे तो हम जो बेस क्लास है उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, बट नॉट द प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास। पर बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते। The public derivation does not change the access specifier for inherited members in the derived class. अगर हमने क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज किया है तो जो पब्लिक मेंबर हैं वो पब्लिक ही मेंशन होंगे, जो प्राइवेट मेंबर हैं वो प्राइवेट ही मेंशन होंगे इन द डिराइव्ड क्लास। लाइक एग्जांपल है क्लास सुपर। क्लास सुपर में हमने प्राइवेट मेंबर इंट लिया है x, पब्लिक इंट y, प्रोटेक्टेड इंट z। अब हमने इसकी एक बेस डिराइव्ड क्लास बनाई जिसका नाम है सब और इसका एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। अगर इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो हम इसके प्राइवेट मेंबर को प्राइवेट ही यूज करेंगे, पब्लिक मेंबर को पब्लिक ही यूज करेंगे, सिमिलर प्रोटेक्टेड मेंबर को प्रोटेक्टेड ही यूज कर सकते हैं इन द डिराइव्ड क्लास। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी मोड, जिसमें हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते हैं। Next is the private visibility mode. The private derivation means the derived class can access the public and protected members. Private में भी हम public और protected members को ही access कर सकते हैं of the base class के and become the private member of the derived class. हम base class के
पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज तो करेंगे बट वो डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे. दिस इज द यूज ऑफ प्राइवेट विजिबिलिटी मोड. लाइक एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लास सुपर, जिसमें इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड है. इसकी एक सब क्लास बनाई मैंने सब, जिसका डेटा टाइप, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट. अब प्राइवेट के केस में हम जो भी इसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं बेस क्लास के, इंट वाई एंड इंट एक्स, इसको हम डिराइव्ड क्लास में एज प्राइवेट ही यूज कर सकते हैं. दैट इज int y and int z can be used as private in the derived class. सिर्फ public and protected member of the base class, not the private member of the base class. इन्हीं को हम private के access specifier के form में mention कर सकते हैं. So this is the private visibility mode. Next is protected visibility mode. The protected derivation means that the derived class can access the public and protected member of the base class. प्रोटेक्टेड मेंबर में भी हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं बेस क्लास के. विद प्रोटेक्टेडली डिराइव्ड क्लास, द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास. जब हम किसी सब क्लास को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करेंगे किसी डिराइव्ड क्लास को, तो उसमें जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं बेस क्लास के, वही प्रोटेक्टेड मेंबर में आएंगे डिराइव्ड क्लास में. दैट इज एग्जाम्पल में देखिए, हमने इस क्लास में जो डिराइव्ड क्लास सब है, इसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया है प्रोटेक्टेड. अगर हमने इसको प्रोटेक्टेड मेंशन किया है तो हम क्लास सुपर के इंट वाई एंड इंट जेड को प्रोटेक्टेड में ही यूज कर सकते हैं. इन द डिराइव्ड क्लास प्रोटेक्टेड में ही इंट वाई जेड को यूज कर सकते हैं इन द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर फॉर्म. बस इसके अलावा वी कैन नॉट मेंशन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स. सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर डिफरेंट विजिबिलिटी मोड्स. जिसे फ्लो चार्ट में मैंने समझाया, आप उनको रिलेट करके थ्रू दीज एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इफ यू पीपल फील एनी डाउट देन मेल मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग.